पल आया ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के लिए। कितने जन आनंदित हैं? हमारा विश्वास है कि आज परमेश्वर के घर में आना आपके लिए आशीषों का, बरकतों का कारण ठहरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सब बैठ जाओ। टेस्टिमनीज को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलविंदर कौर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? लुधियाना से। ओके, क्या टेस्टिमनी आपकी बताएं जब आपकी शादी हुई 2021 में? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा? तो पहले सारी कलीसिया ਨੂੰ जय मसीह की। मैं अपनी बेटी की गवाही देन जा रही ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 7 ਮੰਥ 2-3 ਦਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੋਪਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਕੈਨ ਲੈ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਇਸ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ जाओ। प्रभु ने सानू और रास्ता दिखाया सी गए। वो कहंदे भाई आप बताएं कि जब ऐसी सिचुएशन आपको मालूम हुई डॉक्टर ने बताया कि ये हालत है बच्चे की कि जो एमनाइटिक फ्लूइड है वो भी खत्म हो चुका है, सूख चुका है, बच्चे का एक तरह के डेड ही बोल रहे थे वो, क्या मन में आ रहा था उस समय? क्या आपसी बातचीत क्या थी, सोच क्या थी उस वक्त आपकी? हाँ जी उस टाइम असी लेडी डॉक्टर कोले गए सीगे ते उन्होंने चलो प्रभु ने सानू राह दिखाया ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 9 ਮੰਥ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ 10-11 ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫਲੂਇਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ने बेटी ना ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें कि 12 फरवरी 2022 की बेटी को जो अनॉइंटिंग ऑयल मिला था वो भी आप लेके गए,
अपनी वाइफ के लिए इनके पेट के ऊपर ऑयल अप्लाई किया, प्रेयर को रिसीव करते रहे और वर्ड्स डिक्लेयर करते गए। उस प्रेयर को भी हम एक बार देखते हैं अपने सीन पे। उस ऑयल को उठा लो अपने हाथों में। जीसस क्राइस्ट, ये ऑयल नहीं आपका लहू बने। जिन जिन लोगों पे आज आए वो सदा के लिए दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से और बंधनों से आजाद होकर वापस जाएं। उस ऑयल को अप्लाई करो। सब लोग ऑनलाइन भी उस ऑयल को अप्लाई करो। आज उसमें पावर है खुदाबंद की। ओके सिस्टर, आप बताएंगे जब आपने ऑयल अप्लाई किया और लगातार अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया और वर्ड आपने ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ, ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਮੂਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਸਲੋ ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। हालेलुया। ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ हालेलुया। ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ, ਤਾਹੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ऊंची आवाजों वाले हालेलुया। तारीफ करें इक्लेसिया इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। और आज आप जब प्रेयर को ग्रहण करोगे, वर्ड को रिसीव करोगे, जो वर्ड परमेश्वर के दास देते हैं, आप उन टीचिंग को ग्रहण करते जाओगे, प्रेयर्स को रिसीव करते जाओगे। आज उन शर्मिंदगियों का आखिरी दिन आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। सामने ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। क्या नाम है आपका? जावेद, कहाँ से आए आप? जलंधर से। ओके, आपकी गवाही के 9 साल पहले आप सऊदी अरब से आप इंडिया वापस आए थे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद तय कि क्या हरकतें होने लगी, क्या घटनाएं हुई आपके साथ, क्या गवाही आपकी? सऊदी अरब से हम आए जब, तो 1 साल सही रहे। उसके बाद रात को सोए, जो है काली रात अमावस्या थी। उसके बाद जब मैंने सुबह उठा तो पूरा शरीर में पेन दर्द होने लगा और बहुत मैं परेशान हुआ, ये क्या मुझे हो गया। और जो है डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता है कि आपका डिस्क हिल गया है, जो है आपका L4 L5 डिस्क हिल गया है। और बहुत मैंने इलाज करवाया, बहुत दिनों से जो है बहुत 6-7 डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, दिल्ली भी गया और जलंधर भी बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया, वो नहीं ठीक हुआ। तो आप करके जब आप रात को सोते थे, जब अटैक होते थे तो आपके हाथ पैर एकदम से मुड़ जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। सपनों में अटैक होते थे? हाँ, सपनों में दिखता था सांप की, सांप आ रहा है, काट रहा है। और जो है सपनों में बहुत बुरी बुरी सपने आते थे। रात को जो है
नींद नहीं आती थी, बेचैनी सी रहती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बेचैनी रहती थी। और उसके बाद मैंने 9 साल तक दवाई खाया। दवाई खा खा के इतने परेशान हो गया मैं कि मैंने पैसे भी बहुत लगाए, दवाई भी बहुत खाया। अब इतनी डिप्रेशन में चला गया बीमारी की वजह से कि लगा कि अब मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना अब मेरे ज़िंदगी में। तो मैंने फांसी भी लगाया 5 बार पंखे से कि हाँ मैं इस तरह मर जाऊं, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। घर में भी बहुत मतलब दिमाग काम नहीं करता था, मैं क्या करूं ना करूं। फिर घर में भी बीवी बच्चे से लड़ाई होता रहता था बहुत ज़्यादा। जो है माता पिता से बोला तो माता पिता बोलते हैं कि ये नटंकी करता है, इसको कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने रिपोर्ट भी दिखाए, दवाई भी दिखाई, देखो दवाई खाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं ठीक हो रहा। ओके, काफी डिप्रेशन में थे भाई और रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हो चुका था, अटैक हो रहे थे, डिप्रेशन में थे और इतनी मुसीबतें आ गई तो आप तरह के अपने जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी आपने। हाँ जी, हाँ जी। आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत जगहों पर भी गया, मैं मुस्लिम घराने से हूँ। ओके, काफी अन्य जगहों पर गए आप, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 साल लगातार मेडिसिन भी खाई हाँ जी, हाँ आपने। जी। तो आपने फिर ब्रदर ऐसी निराशा भरी जिंदगी में फिर आपको अंकुर लमसी यहाँ के बारे में किसने बताया फिर? मेरी छोटी सी दुकान है राशन की, तो मैं गया सामान लेने के लिए। कोई विश्वासी बंदे थे जो यहाँ पे आते हैं, तो उनके पास मैं गया। मैं कहा आप लोग जाते हैं चर्च, क्या चीज़ है चर्च? मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा एक बार जाके देखो आप, जो है वहाँ पे चलो एक बार। मैं कहा कि आप तो दुनिया से जाना ही है, एक बार जाके देखते हैं क्या होता है। फिर हम यहाँ पे आए, नहीं जो है उनसे बात करके मैं घर पे गया दोपहर में। तो फिर मैं सोया दोपहर में, तो मैं देखता हूँ कि क्रूस है ईसा मसीह का, उसके तरफ पूरा दुनिया भाग रही है, उसके तरफ पूरा दुनिया भाग रही है, उसको चूम रही है। तो फिर मैं सो के जगत में कहा ये क्या देखा मैं, ये क्या चीज है। फिर जो है संडे आया, तो संडे को मैं यहाँ पे आया, तो पापा जी ने प्रे किया कि सारे डिप्रेशन के रोग दूर हो जाए। तो जो है मैंने रिसीव किया, उसके बाद से मरने के ख्याल नहीं आते। अगर 14 अगस्त 2025 की आप बात कर रहे हैं, 24 की, उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की थी। उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं आपके अंदर से वो सारी बीमारियां, वो तकलीफें, वो डिस्कंफर्ट निकल के बाहर आ जाए अभी यीशु के। तो आपने ब्रदर जैसे सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की, बीमारी को डांटा, डिप्रेशन को डांटा, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, उसके बाद तय क्या हुआ? उस समय मुझे सनसनाहट सा शरीर में महसूस हुआ, उसके बाद इतर सा खुशबू महसूस हुआ मुझे, और उसके बाद जो है उसके बाद से ही जो हाथ पैर मुड़ते थे, मेरे दर्द थे, सारे ठीक हो गए थे। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने चेक करके देखा आपने, हाँ जी, हाँ जी। वो रीढ़ की हड्डी का रोग पूरी तरह से खत्म था। हाँ जी, हाँ जी। डिप्रेशन, वो जो लाइफ डिप्रेशन से भरी थी, हाँ जी, हाँ जी। वो सब ठीक बताएं है। अब कैसी है लाइफ आपकी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब दर्द भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं मुड़ते हैं, और कामों भी मेरा सही चलता है, और खुदा का धन्यवाद है, बहुत सही है, बहुत ब्लेस है। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद लाइफ पूरी तरह से ब्लेस्ड है। हाँ जी, हाँ जी। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी भाई पूरी तरह से आजाद है। जैसे प्रभु के दस से सामर्थ्य प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्माएं जाती रही, डिप्रेशन जाता रहा, बीमारियां जाती रही, आज आपके सामने पूरी तरह से ठीक खड़े हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। हालेलुया, तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कलीसिया। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस, बोले सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। रहने वाले कहाँ के मैं आप? लुधियाना, पीछे तो हम जम्मू के रहने वाले हैं, पर इधर हम लुधियाना के रहने वाले हैं। ओके, आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2009 को हुई थी। ओके, बताएं क्या गवाही है आपकी? मेरे 4 लड़कियां हैं, बेटी, और पहली बेटी हुई तो सारे खुशी थे, दूसरी बेटी हुई तो कहने लगे कि फिर बेटी हो गई, तीसरी बेटी हुई तो फिर कहने लगे कि फिर इसके बेटी हो गई,
चौथी बेटी हुई तो फिर कहने लगे कि फिर इसके बेटी हो गई। तो मैं छोटी सी बचपन की प्रभु में हूँ। मेरे माँ बाप कोई प्रभु में नहीं है, सिर्फ मैं अकेली और मेरे पीछे मामा जो है, नाना नानी, सब मेरे बचपन से ही मसीह में थे। तो मैं प्रभु को मानती थी, मेरा घर वाला भी नहीं मानता था। पर जब वो मैं परमेश्वर में आई, मैं प्रभु यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं मानती हूँ तो वो क्यों नहीं मानता, वो भी तेरे आगे घुटने टेके, ओके, वो भी तुझे मानने लग जाए। जब आपके पास 4 बेटियां हुई तो लोग आपको ताने देते थे, बुरी बातें देते थे। बहुत मुझे बातें करते थे, मेरे मायके वाले भी, ससुराल वाले भी, कि ये बेटियों की भंडार भर के रखी है, इसके पास बेटियां हैं। तो मेरा घर वाला भी मेरे थोड़े लड़ाई झगड़े में रहता था, मेरे मार पीट के मारता पीटता, तो बेटे की वजह से। तो मैं यही प्रभु से कहती थी कि प्रभु जी तू मुझे कब देगा कि मुझे ताने मैंने मारते हैं। और उन 4 बेटियों के बाद दोबारा आपने फिर से जब ट्राई किया तो 2 बार आपका 2 बार मिसकैरेज हो गया मेरा। रिसीव करने के बाद भी 3 महीने होते थे तो 3 महीने मिसकैरेज हो जाता था। क्या बोलते थे डॉक्टर, तो कारण क्या है इसका? डॉक्टर ने बोला कि आप बच्चेदानी कमजोर है, इसलिए आप केस मत और देखो। तो हमने कहा कि हम तो बेटा देख रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं आप मत रिसीव कीजिए, आप मत देखिए, क्योंकि आपकी कमजोरी हो गई है, क्योंकि बेटियां 4 हो गए हैं, इसलिए बच्चे हो गए हैं। और इस वजह से आप मेंटली बहुत ज्यादा हाँ, परेशान मैं रहते अंदर थे। अंदर रोती रहती थी कि मेरे बेटा ही नहीं है, बेटियां तो है, प्रभु जी मुझे एक बेटा दे दीजिए। तो पिछले 2024 में मैं 25 दिसंबर, मेरी सिस्टर थी, उन्होंने ही बताया हमें, तो हम प्रार्थना सुने, रिसीव किए। तो इसी वही प्रभु ने मुझे आशीष, ओके, इसका जब नाम 25 दिसंबर 2024 को आप यहाँ पे आए, उस दिन पहली बार आए थे या पहले से आते थे यहाँ पे आप? नहीं, पहली बार। उस दिन पहली बार आए थे। ओके, आपने वचन सुना परमेश्वर के दास के द्वारा और आपने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ, मैं ऑनलाइन प्रेयर सुनती थी, ऑनलाइन जो 8:30 बजे मीटिंग होती थी, घर में रिसीव करती थी। मैंने कहा प्रभु मुझे एक दिन देगा परमेश्वर, और परमेश्वर ने मुझे दिया, और सच में दिया। 14 साल के बाद दिया, 14 साल के बाद। हालेलुया। खड़े होके तारीफ करें कलीसिया अपने स्थानों पे परमेश्वर की। अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में सब जन। क्योंकि जब 4 बेटियां इनके पास थी, ये तो खुश थे, लेकिन लोगों के कुछ ऐसे ताने, ऐसी बातें जो सुनने को मिली जिसकी वजह से अंदर से डिस्टर्ब हो चुके थे। इसलिए मन की इच्छा थी कि अब एक बेटा भी मेरे पास होना चाहिए। और इतने साल हो चुके थे, 2009 में शादी हुई और बेटा नहीं था पास में। इस चीज की शर्मिंदगी हमेशा रहती थी। लेकिन जैसे चर्च में आए, 25 दिसंबर 2024 को चर्च में आए और सितंबर 2025 में, यानी एग्जैक्ट 9 मंथ बाद, जिस दिन पहली बार आए उसके एग्जैक्ट 9 महीने बाद आज ब्लेसिंग इनके हाथ में है। तो ये जीवित गवाही है कलीसिया। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में गए हालेलुया। मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है शक्ति, हो तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है शक्ति। तू है पालनहारा, तू है सृजनहारा। हालेलुया, हालेलुया। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए।
तो सब जन बैठ जाएं अपनी जगहों के ऊपर, हम और भी गवाहियां सुनते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया। तो आप थे ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मंडल है। कहाँ से आए आप? हम उड़ीसा से आया है। ओके, आपकी गवाही के 12 साल की उम्र में ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। अटैक करते था। तो ब्रदर खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उस समय में कैसे अटैक स्टार्ट हुए, कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? हम 12 साल के उम्र से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक करता था और हम तो प्रभु को नहीं जानते थे और बहुत प्रॉब्लम हमारा होता था। जहाँ हम ऐसा अटैक होते 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 थे 15-20 साल का अंदर हम निशा में चला गया। बहुत निशा करता था, रास्ता घाट में गिर जाता था, बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और मेरा फैमिली में बहुत, जब हम शादी किया 20 साल के बाद, मेरा बहुत शादी करने के बाद बहुत प्रॉब्लम आया। हाँ, बहुत प्रॉब्लम आया। मैं बहुत प्रॉब्लम में, मैंने दुष्ट आत्मा का अटैक था। मैं गांजा, भांग, शराब सब कुछ नशा करता था। ओके, 20 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू कर दिया। हाँ। तो बताइए कि ब्रदर कौन सा नशा उस समय आप करते थे? हम शराब पीते थे, गांजा, भांग सब कुछ पीता था। और सारी की सारी कमाई आप तारीख आप नशे में उड़ाते थे उस समय? हाँ, दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। शराब पी के जहाँ था गिर जाता था। फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होता था, झगड़ा झाटी ये सब देख के मेरा 3 लड़का शराब पीने, वो लोग भी शराब पीने लग गया और शराब पी के मेरा पूरा फैमिली बर्बाद हो गया था। फिर धीरे धीरे वहाँ उड़ीसा में मेरे एक तो फैक्ट्री लगा था, प्लास्टिक का फैक्ट्री, वो भी जल गया। मेरे बीवी आज 30 साल से बीमार हो गया था और बहुत प्रॉब्लम में था। ऐसा करते करते कहाँ जाऊँ, किसका पास जाऊँ, बहुत पूजा पाठ किया और तो ब्रदर आपने कभी कोशिश की इन चीजों, नशे को छोड़ने की, इन चीजों से बाहर आने की? हाँ, बहुत कोशिश की नशा छोड़ने के लिए, नशा नहीं छोड़ पाता था। ओके, अब वो चीजें बढ़ती जा रही थी उस समय? हाँ, नशा और भी बढ़ती जा रही थी। रात दिन 24 घंटा हम नशा करते थे। फिर कहाँ कौन है दुनिया का मालिक, कौन हमको बचाएगा, कौन मेरा फैमिली को बचाएगा, ऐसा सोचता था, किंतु कुछ नहीं होता था। तब ऐसा करते 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 कुछ इधर उधर जुगाड़ करके वहाँ एक तो फैक्ट्री हम बनाया था। वो फैक्ट्री 2015 में मेरा जल गया पूरा। हैं, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ। होते होते हमारा बीवी जब बहुत बीमारी में आ गया, मरने वाला था, उस टाइम में मैं देखता सोचता था कौन है परमेश्वर हमको बचाएगा। फिर हम पापा जी को सपनों में 3-4 बार हमको लेहन करने देखा यूट्यूब में देखते देखते। फिर हम यहाँ आके प्रभु का दास ने मुझे लेहन किया, प्रभु का दास जी मामा जी पापा जी ने मुझे लेहन किया, बपतिस्मा लिया। फिर मेरे नहीं बोला, मेरा बीबी अभी बहुत अच्छा है, फैमिली सब बाल बच्चा निशा छोड़ दिया है, अब सब खुशी से है। और भुवनेश्वर में मेरा 18 बकरा घर है और मेरा फैक्ट्री बहुत बड़ा अभी बना दिया है। अच्छा से हम है, बहुत खुशी है हमारा फैमिली। हम प्रभु का दास को धन्यवाद, पापा जी को मामा जी को धन्यवाद, तारीफ करें जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, सारा कुछ खत्म हो चुका था। तो YouTube के माध्यम से हम खुंद्र लम्स के बारे में पता चला, तो लगातार मीटिंग अटेंड करनी शुरू की और जब प्रभु के दास के वचनों को सुनते थे, एक नई उम्मीद जागी कि हाँ प्रभु मुझे फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। तो लगातार चर्च आते रहे। फिर जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने सुना कि प्रभु के दास और दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। उस प्रार्थना के बाद इस भाई ने बपतिस्मा ले चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और आज आपके सामने पूरी तरह से ब्लेस खड़े हैं। हालेलुया। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सब तो पहला फादर साहब ने जय मसीह की, सब तो पहला भाई साहब ने जय मसीह की, बुआ जी ने जय मसीह की
ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। क्या नाम है आपके बेटे का? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਇਲ ਆਸਟਿਨ। ओके, कितनी उम्र है इस वक्त इसकी? ਇਹਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? एड्रेस? ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ। ओके, आप खुद क्या करते हैं? मैं स्टाफ नर्स हाँ, पर इस टाइम मैं फ्री हाँ। जो बेटा मेरा होया उस समय ओके, मैं फ्री रही आप ये बताएं कि जब हाउसवाइफ। आपके बेटे को बाय बर्थ ही इसको चेस्ट में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। हाँ जी। ओके, बताएं क्या थी प्रॉब्लम, क्या मसला था, वो खुल के बताएं उसके बारे में। मेरा बेटा 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਖਾਂਸੀ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇਚਰਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਲਿੱਤਾ, ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੌਲੀ 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 ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋਥ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਾਂਸੀ होनी, उस तो बाद आप ये बताएं कि जब आपका बेटा 3 साल का हुआ तो डॉक्टर ने इसको क्या बताया था? अस्थमा का रोग है या क्या क्या बीमारी थी उस समय? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਫੇਡਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਟੈਸਟ ਤੇ ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ। ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆਈ, ਵੋਮਟਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਔਰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ओके, जब पता चला कि इनको अस्थमा का रोग है, जो पंप इनहेलर, ये पंप इसके हाथ में है, इसको हर रोज यूज करते थे या कभी कभी क्या था? हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ केयर जी बड़ा बिजी सी। इसको ये खुद यूज करता था या आप करवाते थे? नहीं, मैं करवाती सी। बच्चा सी, इन्होंने पता नहीं सीगा कि ओके, तो स्कूल लाइफ फिर कैसी थी? स्कूल लाइन ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਇਨਹੇਲਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ, 4ਥੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। कितने डॉक्टर चेंज किए? ਅਸੀਂ 7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ओके, मतलब जब से ये पैदा हुआ तब से बस दवाइयाँ ही चलती जा रही है। कभी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम, कभी अस्थमा का रोग हो गया, कोई ना कोई बीमारी चलती ही रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी 24 नवंबर 2024 को जब चर्च में आए? तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਡਸਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਹਵਾ ਨਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਰਚ 'ਚ ਘੱਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪੁਰਪੜ ਤੇ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਇਲ ਮੈਂ ਇਨਹੇਲਰ ਦਵਾਂ? ਮਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ हाँ जी हाँ जी, बताइए क्या करें आप उसके बाद? उस दिन ना सैक्शन च बैठी इन्हू बार-बार पूछ रही सी बेटा मैं इनहेलर दवा? नहीं मम्मा मैं नहीं लेना, मैं प्रेयर सुनन दियो, मैनू डिस्टर्ब ना करो। मैं कहा ओके, आज तू इथों चंगा हो के जाएगा। जे तू आज परमेश्वर के घर आया ना, तू आज चंगा हो के जाएगा। सचमुच खुदा ने तो उधर ही चंगा किया। कोई इनहेलर नहीं लिता, घट्टो घट 5 घंटे से बैठा रहा, और मेरा बेटा उसी तो आजाद है, फ्री है। कोई इनहेलर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, यीशु के सामर्थ्य नाम में ਅਸੀਂ ब्लेस है। मेरा बेटा ब्लेस है, मेरा बेटा चंगा हुआ। ओके, अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? ये पूरे 1 साल तो ठीक है। ओके, मतलब पिछले नवंबर की बात है जब प्रेयर रिसीव करी थी आपने। हाँ जी। उस दिन मीटिंग में, और उसके बाद इसने नवंबर के बाद दिसंबर, यानी वो सर्दियों का पूरा सीजन निकला। बिल्कुल निकल फिर गया। गर्मियां आई, बिल्कुल गर्मियां भी निकली, अभी फिर से सर्दियां शुरू हो चुकी है, बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम नहीं इसको हुई। नहीं प्रॉब्लम कोई आई। कोई इनहेलर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऊंची आवाज में कोई हालेलुया! चल के देखिए, चल के जैसे ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया। और अभी अभी आप बेटा खुद बताएं, अभी बिल्कुल ठीक है? यस कोई सांस नहीं चढ़ता है? No. और इसका इस्तेमाल नहीं किया No. 1 साल से? यस कोई मेडिसिन नहीं? नो। तारीफ करें इक्लेसियास वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। जीवन मिलया 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 ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। टुट गए गम भी मुक गए थलू सुख गए खुदा। हालेलुया हालेलुया। तो तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस तारीख को इंग्लिश जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बू आ, ठवाला दे रहन वाली आ, गुरदासपुर साडा जिला वा। ओके, आपकी गवाही की आई किते जा रहे हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी बेटी सेवा कर दी ही, मैं सानू कोई घर छड्ड के गया। मेरिया पैर दियां हड्डियां टुट गईयां, बांह दियां हड्डियां टुट गईयां। 3 डॉक्टर अही चेंज किते, डॉक्टर ने प्लास्टर लाता, दवाइयां खांदे रहे। मुड़ के मैं बेड ते चली गई। बेड तो मेरा बाथरूम लैटरिंग मेरी बहुत मुश्किल हो गई। फैमिली के सहारे मैं करती रही। ओके सिस्टर, तो आप तरह पूरा तरह परिवार के ऊपर डिपेंड थे आप, और डॉक्टर आपका इलाज कर रहे थे उस समय?
हाँ जी हाँ जी तो आपने काफी इलाज करवाए लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका आपके ऊपर। हाँ जी हाँ जी। और ये सिस्टर टोटली बेड के ऊपर थे और इनकी बेटी ने संभालती थी उस समय, अपने कपड़े तक नहीं चेंज कर पाते थे, इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी कि टोटली बेड के ऊपर थे। लगातार इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, 3 ऑर्थो स्पेशलिस्ट, हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप तरह की सिस्टर उसके बाद अपने कितने साल अपने लगातार मेडिसिन खाई आपने? 1 महीना मेडिसिन खाई, 1 महीना मेडिसिन खाई, 2 महीने चलता रहा, 2 महीने मेरा चलता रहा, इलाज चलता रहा। हाँ जी। और लगातार मेडिसिन खा रहे थे, इन्होंने काफी डॉक्टर भी चेंज किए, तो काफी पैसे भी खर्च हो चुके थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इनका जो बेटा इन्हें गोद में उठाकर चर्च में लेके आते थे, उस समय ऐसी हालत हो चुकी थी कि बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे, टोटली बेड के ऊपर थे। तो आपके सिस्टर फिर आप तरह के आप पहले से अंकुंद्र लामसे के यहाँ के साथ पहले से जुड़े हुए थे आप? अरे वावा चिर तो जुड़े सा, मैनू विश्वास ही भी मैनू परमेश्वर चंगिया करेगा। टुटियां हड्डियां जड़न वाला परमेश्वर आ, और कोई नहीं काम कर सकता, और परमेश्वर काम कर सकता आ, और डॉक्टर जीसस काम करता आ। तो उसके बाद फिर 7 जुलाई 2024 को इनकी फैमिली वाले इन्हें उठा के चर्च लेके आए थे और उस समय हीलिंग हॉल में बैठे थे। उस समय प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा। तो आइए हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के नाम में सब प्रकार की हड्डियों के रोग आपको छोड़ के चले जाएं, सब प्रकार के रोग आपको छोड़ के चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप तैसे जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की हमने सुना, तो जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? परमेश्वर दे दास ने प्रे की थी, उसे वेले मैं उठ के खड़ी हो गई। परमेश्वर दे दास कहते एक्सीडेंट तेरा भी चलन फिरना, जो करना चाहिए करना, पर मैं चल के उसे वेले खड़ी हो गई। तो तारीफ करे कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आपने सुना कि ये बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, एकदम से टूटी हड्डियों में बल आया, उसी समय सिस्टर अपने बेड से उठकर खड़े हुए, चलना शुरू किया। आज आपके सामने है, बस चल के दिखाएं सिस्टर आप। तारीफ करे कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है सब नामों से आरा। तो तारीफ करे कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। अब 1 साल 7 महीने हो चुकी सिस्टर पूरी तरह ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। यीशु मसीह ने इस बैंड को हील किया। तो तारीफ करे कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो आज भी जो पेशेंट जो हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप कैसी भी हालत में आप हीलिंग हॉल में हैं, तो मेरा विश्वास है जैसे आज प्रभु के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, वो घोषणा करेंगे आज आपके डेथ बेड का, आपकी बीमारियों का आज आखिरी दिन होगा। शुद्ध के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रामकृष्ण साहू है। ओके, कहाँ के रहने वाले आप? जी मैं छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। ओके, साथ में आपके सिस्टर हैं? जी मेरे सिस्टर ओके हैं। सिस्टर आप बताएं जरा क्या हुआ था आपके परिवार में 14 साल पहले जब जादू टोना हुआ था? तो इसको मेंटली डिस्टर्ब था और क्या बोलते हैं इसको, कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था और उसके वजह से बहुत से परेशानी होता था। मतलब ऐसी क्या हरकतें थी, क्या करता था ये आप बता दें। जी मैं बता रहा हूँ जी, उस बचपन से ही मुझे जादू टोने का अटैक होता था। रात को मैं सोता था तो मेरे बेड को कुछ खुजता था, ऐसे लगता था। रात में जब बहुत रात हो जाता था तो गहरी नींद में पड़ता था तो कुछ मेरे अंदर घुस जाता था। उसके बाद छत के ऊपर कुछ मेरे को सुनाई ही देता था, घर वाले को नहीं दिखाई देता था, मुझे महसूस होता था। उसके बाद मैं तालाबों में, गांव में तालाब में नहाने जाते हैं, वहाँ पे मेरे को अटैक होता था। मैं वहाँ पे
जब होता तालाब में नहाने जाता था वहाँ मेरे को करंट जैसे महसूस होता था, वहाँ खींचता था मेरे को, मैं पुल को क्रॉस नहीं कर पाता था। वहाँ जाने के लिए मुझे मेरे धड़कन है वो बढ़ने लगता था। उसके बाद मैं ट्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता था, वहाँ भी मेरे को वही अटैक पड़ता था। मैं धीरे धीरे करके आपको पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए थे। उसके बाद ये सब चीज के बाद धीरे धीरे मेरे मेंटली दिमाग आने के पागलपन का दौरा हो गया। मैं घर में नहीं रहता था, कहीं भी चला जाता था, और कहीं प्लेटफार्म में सोता था, कहीं कोने पे पड़ा रहता था। एकदम मैंने बहुत बार सुसाइड करने का कोशिश किया। इतना हताश निराश था कि मैं कभी भी जिंदगी में कहना चाहिए जीना नहीं चाहता था। हमेशा प्रयास करता रहता था कि मैं किस चीज़ से मरूं, किस चीज़ से खाऊं तो मर जाऊं, आने के तरकीब ढूंढने लगता था ताकि मुझे इस संसार से मुक्ति मिल जाए। मैंने अपने कीटनाशक जो खेत में छींटते हैं उसको जहर को खा लिया था, जो जहरीली सांप था उसके आगे मैं अपना पैर रखता था ताकि वो मुझे डसे। उसके बाद मैं यहाँ से मेरे को मुक्ति मिल जाए। इतना हताश निराश था, बैगा गुना करा के थक गए थे, डॉक्टर के पास जाते थे। ओके, ये सारी चीजें उस समय हुई जब आपके ऊपर पागलपन के अटैक हो रहे थे। आपको सब याद है ये, पर कंट्रोल नहीं रहता था। जो पागलपन है उसके बाद हुआ। ओके, उसके बाद हुआ। पहले वो सब चीज अटैक पहले से होता था। ओके, अटैक के बाद पागलपन के दौरे पड़ते फिर उसके बाद पागलपन के दौरे तो परिवार में कैसा माहौल था उस समय? पूरा सब परिवार हरास निराश थे, गांव वाले भी परेशान थे। मेरे स्थिति को देखकर हमेशा मैं घर के कोने में पड़ा रहता था। कहना चाहिए एकदम कई महीनों से नहाया भी नहीं रहता था, मेरे शरीर से बदबू कई महीनों से एक कोने में पड़ा रहता था। घर वाले परेशान हो गए, इसको क्या हो गया है। डॉक्टर के पास लेते थे तो डॉक्टर बोलता था, तो आने के डॉक्टर के पास ले जाते थे तो डॉक्टर ने इसका शरीर नॉर्मल है ऐसे बोलते थे। उसके बाद आने के बैगा गुनिया के पास जाते थे। मेरे सिस्टर मेरे जीजा है, उन लोग मेरे को लेकर जाते थे। ओके, सिस्टर आप भी बताएं कि आपने तो अपने भाई की ऐसी हालत को देखा इतने समय से, जो पागलपन के उसको अटैक हो रहे थे, तो घर का माहौल कैसा था, कैसी हरकतें थी इसके घर में? उस समय उसका हाल इतना खराब होने की वजह से घर वाले सारे परेशान थे, और इसकी वजह से ने ये टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ देता था, बर्तन भी फेंक देते थे, और बाहर से जैसे दुकान वहाँ जाकर कुछ भी उठाकर खा लेते थे। किसी के पास दुकान में चला जाता, वहां से खाकर आ जाता था, छत के ऊपर चढ़ जाता था। गांव वाले परेशान हो गए, एक ऐसा कर रहा है, किसी लड़की को छेड़ देता था। मेरे को कुछ दिमाग नहीं रहता था, कहीं इधर उधर भाग जाता था। रात को जब मैं सोता था तो एक कमरे में बंद कर देते थे। उसके बाद मेरे रस्सी से खाट में बांध देते थे ताकि ये रात को कहीं भाग ना जाए। कौन बांधता था आपको? हमारे घर वाले। आपको रस्सी से कमरे में बंद करके रखते थे? जी, कमरे में बंद करके रखते थे। मेरा उस समय मेंटली दिमाग, मेरे को कुछ पता नहीं होता था। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। और परिवार वाले आपको 3-4 बड़े हॉस्पिटल में भी लेकर गए इलाज करवाने के लिए? जी, पर वहां भी मतलब कुछ भी हल नहीं हुआ? कुछ भी हल नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर जब आए तो कैसे परमेश्वर ने फिर लाइफ चेंज करी? जी, मेरे सिस्टर ने मेरे को यहाँ पर लेकर आए थे। उस समय मैं आया था तो भी मेरा मेंटली दिमाग अपसेट था। यहाँ भी कहीं जाकर इधर उधर आने के उपद्रव कर देता था। तो यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि सिस्टर आप इसको एक साथ रखना, कहीं भी इसको एक साथ रखना। वॉशरूम भी जाता था तो मेरे साथ रहती थी और हर चीज आने के देखभाल यही करती थी। ओके, जब आपकी परिवार वाले फैमिली वाले यहाँ पर आपको लेकर आए तो हर मीटिंग में आपको बैठाते थे, लेकिन आप बैठते नहीं, कभी इधर कभी उधर भागते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो पागलपन के अटैक खत्म होना शुरू हुए थे। जी, ओके, उसके बाद ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर? जी, उसको हम एक बार देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। ले चल प्रभु मुझको तू अपने राहों से ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद फिर क्या हुआ आपको? क्या फील हो रहा था उस समय? ले हैंड होने के बाद मेरे को ऐसे लगा जैसे
प्रभु के दास ने लेहन किया, उसके बाद मेरे शरीर में प्रकाश जैसे आने के मेरे को महसूस हुआ। और जैसे आप पहले बच्चों के जैसे करते रहते थे, वो सारी हरकतें बंद हो वो चुकी सारे है। हरकतें दूर हो गया है और मैं स्वस्थ हूँ। बिल्कुल ठीक है। अभी बिल्कुल आप ठीक हूँ। सिस्टर आप बताइए ना, अभी फिर घर का माहौल कैसा है कि आपके भाई को परमेश्वर ने चंगा किया? अभी घर का माहौल पूरी तरह से ठीक है और उसके वजह से इसका शादी भी नहीं हो रहा था। उसके बाद लेहन होने के बाद इसका शादी भी हो गया है 2025 में। इसकी मैरिज भी हो चुकी है। हाँ। और कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? अब हम लोग को 10 महीना हो गया। ओ जीसस, तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। होया नू जग फिका लगदा ए, यसु रंग विच रखिया होया नू जग फिका लगदा ए। ओदा वचन प्यारा शहद दे नालों मिठा लगदा ए, ओदा वचन प्यारा शहद दे नालों मिठा लगदा ए। आख नू विच रखिया होया जग फिका लगदा ए, आख नू विच रखिया होया जग फिका लगदा ए। यसु रंग विच रखिया होया जग फिका लगदा ए, यसु रंग विच रखिया होया जग फिका लगदा ए। ओदा वचन प्यारा शहद दे नालों मिठा लगदा ए, ओदा वचन प्यारा शहद दे नालों मिठा लगदा ए। जग फिका लगदा। तो आपने ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण है। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा राज्य जिला यमुनानगर से। ओके, आपकी गवाही की जब आपकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी। तो ब्रदर खुलकर गवाही बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, क्या टेस्टमनी आपकी? मैं जब बचपन में मुझे बुखार और पेट का रोग रहता था, धीरे धीरे मैं जब देखने लगा कि मुझे दुष्ट आत्मा के भी अटैक होने लगे और मैं समझ नहीं पाता था। जब डॉक्टर के पास जाते थे तो कोई बीमारी समझ में डॉक्टर के नहीं आती थी, मेडिकल में कुछ नहीं आता था। फिर कहीं अन्य जगह पर भी जाते थे तब भी वहाँ से भी कोई आराम नहीं आता था। परिवार वाले कोई भी बताता था, अन्य अन्य जगह पर कहीं जगह गए, कहीं पर कोई आराम नहीं आया। तो आप धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाते जा रहे थे उस समय? हाँ जी, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैं अपने आप को मारता था और बंद कमरे में या कहीं कहीं जाकर के रोने लग जाता था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं कोई भी काम नहीं कर पाता था। मुझे हर जगह ताने मिलते थे, घर वाले भी परेशान और बाहर से भी कोई बहुत कुछ बोलते रहते थे मुझे। कोई भी मेरा सही नाम लेके मुझे नहीं बुलाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। मैं कुछ भी अच्छी तरह से खा पीता नहीं था और मैं इतना परेशान था कि मेरे अंदर मरने के भी ख्याल आते थे, इससे अच्छा तो मर जाए। अच्छा, आपको उसके बाद आपको पेट का रोग हो चुका था? हाँ जी। कुछ भी आपको पछता नहीं था उसके बाद? हाँ जी। तो आपने काफी डॉक्टर चेंज किए आपने? मैंने 10-15 डॉक्टर चेंज किए, किसी कोई समझ नहीं आया। लेकिन कोई असर नहीं हुआ? हाँ जी। और भी बीमार होते जा रहे थे? हाँ जी। पहले अटैक होने शुरू हुए, फिर डिप्रेशन में चले गए, बीमार हो चुके थे। तब तक के बाद आपके परिवार वाले आपको काफी अन्य जगहों पर लेके गए आपको? हाँ जी। तो कोई असर हुआ आपको? नहीं। चीजें बढ़ती जा रही थी उस समय? हाँ जी। तो आपने कई बार अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की? हाँ जी। आपको उम्मीद थी कि आप कभी ऐसी लाइफ से बाहर आ पाएंगे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी आपको? हाँ जी। फिर आप फिर ऐसी लाइफ में आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्र लम्स के बारे में किसने बताया? फिर मेरी पत्नी को दुष्ट आत्मा का अटैक हो गया था, क्योंकि हम 2016 से प्रभु को जानते हैं और हम घर पर प्रार्थना करते थे। हमारे घर पर पास्टर आते थे। हमने सोचा क्यों ना हम अपने घर पर चर्च घर बनाए। तो हम चर्च घर बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मेरी वाइफ को दुष्ट आत्मा का अटैक और दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं चर्च घर यहाँ पर नहीं बनने दूंगा। तो फिर हमने सोचा कि कोई भी मेरी पत्नी को रोग तो नहीं है, डॉक्टर के पास जाने का कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना मेरी पत्नी का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, ना मुंह खुल रहा था, ना कानों से, ना कुछ भी कर नहीं पा रही थी। फिर पापा जी के रूप में स्वर्गदूत आए, मेरी पत्नी को छुआ और मेरी पत्नी ठीक हो गई। फिर धीरे धीरे हमें सपने में पापा जी दिखने लग गए और खामरा चर्च दिखने लग गया। हमने कई बार दिखने के बाद यहाँ पर फिर हम आना शुरू किया 2022 में। फिर हम यहाँ पर आते रहे और फिर हम ब्रांच में जाते रहे और बाहर प्रार्थना सुनते रहे और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद
हम धीरे धीरे ठीक हो गए। अब हैं 1 साल से बिल्कुल आज़ाद हूँ। तो लगातार आप चर्च आते रहे, जब प्रभु के दास वचनों को सुनाते थे आपने सुना कि इनकी जीने की उम्मीद पूरी तरह खत्म थी, और जब चर्च के बारे में, यहाँ के बारे में पता चला तो लगातार चर्च आना स्टार्ट किया, और जब भी प्रभु के दास वचन सुनाते थे तो वचन के दौरान इनकी लाइफ लगातार चेंज होती गई। तो लगातार प्रभु के साथ बने रहे। फिर 29 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। राइट नाउ हम कमांड करते हैं यीशु के नाम में, सारी दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों को छोड़ के चली जाएं। कमांड करेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, हर एक आत्मा जो मेरी सेहत के पीछे है, अटैक करती है, आउट करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कमांड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आप ब्रदर जैसे अपने वो सामर्थ्य प्रार्थना आपने सुनी, जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की, आउट किया दुष्ट आत्मा को, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद बताया क्या हुआ फिर? मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया। मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया, क्योंकि मेरे पर बोझ भी बना रहता था। ऐसा लगता था कोई मेरे साथ है। मुझे पीछे से आवाज़ें भी आती थी, मगर देखता था कोई भी नहीं दिखाई देता था। और जब प्रार्थना को सुना बिल्कुल आज़ाद हो गया। मैं 1 साल से बिल्कुल आज़ाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब 1 साल के करीब हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद हैं। कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ यीशु मसीह ने इस भाई को खड़ा किया। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। जोर से थैंक यू जीसस बोले, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखवीर सिंह है। मैं जलंधर पिंड ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਓਕੇ। ਮੇਰਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਜੂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। कैसे एक्सीडेंट कैसे ਗੋਡਾ हुआ? एक्सीडेंट ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਟਾਲੇ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, पर वो पीछे वाला इलाका नहीं दे रहा ਸੀ। आप बाइक चला रहे? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक्टिवा से सीखे जी। एक्टिवा के ऊपर थे, ओके। और बहुत ही उसके बीच ट्रैक्टर के साथ आपकी टक्कर हुई जी, और जब आप नीचे गिरे तो उस समय पूरी तरह से बेहोश हो गए थे? मैं एकदम बेहोश हो गया सर। तो लोग जो आसपास से उन्होंने उठाया, हॉस्पिटल लेकर गए? हाँ जी, मेरे फोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਇਆ। कहाँ कहाँ चोट आई थी जब एक्सीडेंट हुआ था? मेरे बाजू फ्रैक्चर हो गए, दोनों हड्डियां बाहर निकल आई सी। उधरों मेरे सिर ते सीगी। दोनों हाथ की या इस हाथ की? एक हाथ की, राइट हैंड की, ओके। और लेफ्ट साइड गिट्टा, गोडा ते चूड़ा मेरा डिसलोकेट हो गया जी, जो वजन नहीं चकदा पिया सी। और लेफ्ट टांग की नसें भी ब्लॉक होना शुरू हो गई थी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, फिर कैसे इलाज चला? क्या बोला डॉक्टर ने? फिर डॉक्टर ने मैनू मैडिसिन दिंदे सी, कहंदे ठीक हो जाऊगा। और मेरा 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਹੋਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਯੂਰਨ ਬਲੈਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੋਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। परंतु मेरे परमेश्वर ने इस लायक किया कि मैं खड़ा होकर बाथरूम कर सकता। पहले ऐसा नहीं था? नहीं था, 6 महीने लगातार मेरे यूरिन ब्लैडर लगा जी। ओके, आप ये बताएं कि कितने हॉस्पिटल में आपको लेकर गए उस समय परिवार वाले? 3 हॉस्पिटल इत्थे जलंधर च ते 3 ही मोहाली विच जी। ते हुण मेरा लवासा दे विच 10 दिन एडमिट रहा जी, ते उन्हां ने भी टेस्ट करके कहा भी इहनूं जां तुसीं परमानेंट ब्लैडर ले ला लो ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰੋ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। परंतु ਹੁਣ मैं एक टाइम जरूर करदा, परंतु सारा दिन मैं खड़े होकर बाथरूम वर्दिया कर लेता हूं। ओके, जब हॉस्पिटल में लेकर गए उसके बाद इलाज चला,
फर्क नहीं कुछ भी पड़ा और आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। बिल्कुल जी। तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते, कौन हेल्प करता मैं था? वॉशरूम ਤੇ ਥੈਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ मैं चल नहीं सकता सी। और व्हील चेयर के ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके थे परिवार के ऊपर। जी जी। 31 दिसंबर 2024 को आप यहाँ चर्च में थे जी, हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे। जी सर। और उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल हड्डियों के जो रोगी हैं उनके लिए प्रेयर करी थी। हाँ। तो उस प्रेयर को जब आपने रिसीव किया तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उस समय ऑयल लगाया गया ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਜੀ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ओके। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ओके, उस दिन आप जानते हैं कि स्पेशल मीटिंग थी 31 9 दिसंबर 2024 को। अनॉइंटेड शॉल के साथ पूरी कलीसिया को, जितने हीलिंग हॉल में बैठे सबको टच किया गया था और आपके ऊपर भी अनॉइंटेड शॉल को लगाया गया था। यस। और उसके बाद परमेश्वर की सामत ने इनको छुआ, इन्होंने खुद खड़े हो गए, चल के परमेश्वर ने जब इनको हील किया, चेक करके देखा तो उस दिन के बाद से ये भाई पूरी तरह से आज हील हो चुके हैं। लगभग 11 साढ़े 11 महीने के करीब हो चुका है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इसे अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। मौजिज़ा 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 हालेलुया मौजिज़ा। आप चलिए जरा चल के दिखाओ। हो यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में मौजिज़ा होता है यीशु नाम में। कुदरत है उसी के कलाम में, मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। और ये सभी टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने फाइनेंशियली वेज इनके ओपन किया और ब्लेस किया। सिस्टर प्रियंका देवी हरियाणा के ये रहने वाले हैं। 11 साल से ये बहन किराए के मकान में रहते थे और अपना घर लेना चाहते थे। जब चर्च में आए, लगातार अपनी बीजों को जब बोना इन्होंने शुरू किया तो परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया और 11 साल की शर्मिंदगी को खत्म करके खुदा ने अपने घर के साथ इनको आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर अजय मसीह की टेस्टिमनी है कि उनको परमेश्वर ने दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ उनको ब्लेस किया। तो उनके परिवार से उनके फैमिली मेंबर टेस्टिमनी देने आए तो परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए भी ब्रदर रविंदर मसीह गुरदासपुर के रहने वाले हैं। आर्मी में जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और इनकी पोस्टिंग जो है वो पंजाब में हो चुकी है, जिसके लिए काफी समय से ये चाहते थे। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। नेक्स्ट टेस्टिमनी जसप्रीत की है, ये इनके फादर हैं साथ में। तो इनकी बेटी की टेस्टिमनी के 4 साल से वो काफी समय से चाहते थे कि वो इंग्लैंड के वीजा को वो ट्राई करना चाहते थे, लेकिन जब इस बार उन्होंने बीज को बोया, अपनी ऑफरिंग को लगातार बोते गए, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया और इनकी बेटी को परमेश्वर ने इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर अमृतपाल बटाला के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत काम किया। काफी समय से ये चाहते थे कि परमेश्वर इन्हें अपने घर के साथ ब्लेस करे और सचमुच खुदा ने बंद रास्ते ओपन किए और अपने नए घर के साथ खुदा ने आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इन ब्लेसिंग्स के लिए। और आप जब बोते हैं परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के कामों के लिए, तो खुदा आपकी लाइफ में काम करता है। आपके वो बंधन जो आप अपनी ताकत से नहीं तोड़ पाते, जब आप बोना शुरू करते हैं वो आपके बंधन टूटते जाते हैं। और आज आपके भी बंधन टूटेंगे और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से है सिस्टर आप? मैं शेरपुर मुकेरिया। ओके,
आपकी गवाही के फरवरी 2021 में आपके साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। हाँ जी। तो सिस्टर खोलकर बताएं कि कैसे कैसे वो अटैक स्टार्ट हुए, क्या गवाही आपकी? ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। तो अब तरह के धीरे धीरे उसके बाद जब अटैक बढ़ते गए तो सिस्टर बता रहे कि जब घर से बाहर जाते थे कहीं पर भी खेलने अटैक होता था, कहीं पर भी खेलने लग जाते, दुष्ट आत्मा इनके सर को पकड़ता था और इतनी शर्मिंदगी थी, लोग मजाक उड़ाते थे। अब तरह के अपने घर से बाहर निकला आपने बंद कर दिया था उस समय। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। उसके बाद धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले गए। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। तो आपने सुना कि सिस्टर की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, यंग एज में इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी कि स्कूल तक जाना इन्होंने बंद कर दिया था। काफी डिप्रेशन में चले गए, बीमार रहना शुरू हो चुके थे और सुसाइडल थॉट आते थे और आपका दिल करता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ कि मैं सुसाइड कर ਲਾਂ। ओके, काफी अन्य जगहों पर भी गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद किसी रिश्तेदार ने इन्हें अंकुंदरुला मसीह यहाँ के बारे में बताया तो लगातार चर्च आते रहे और जब प्रभु के दास वचनों को सुनाते थे तो वचनों के द्वारा इनकी लाइफ लगातार चेंज होती गई। एक उम्मीद जागी कि हाँ मैं लंबा जी सकती हूँ, यीशु मसीह मुझे आजाद करेंगे। तो लगातार चर्च आते रहे। फिर 14 नवंबर 2021 को सिस्टर चर्च में ऐसी हालत में बैठे, डिप्रेशन में थे पूरी तरह और चर्च में बैठे थे। उस समय प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा। तो आप जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। तारीफ करेंगे, हालेलुया। तो आप जैसे कितना टाइम हो चुका पूरी तरह आजाद यहाँ पर? ਮੈਨੂੰ 3-4 साल हो चुके, मैं एकदम ठीक है, मेरे ते कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होता। थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए तारीफ करेंगे, गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएंगे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਬੀਤਾ ਆ। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? ਅਸੀਂ ਗਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਆ। 28 जनवरी 2020 को आपकी शादी हुई थी। ਹਾਂਜੀ। ओके, बताएं उसके बाद जब बेबी के लिए सोचा तो क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आपको? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੇਬੀ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਨਸੀਵ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਬੀ। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? ਅਸੀਂ 4 ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਵੈਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ओके, और मैरिज के बाद 4.5 साल हो गए थे लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। नहीं। डॉक्टर ने क्या बताया जब टेस्ट हुए? थायराइड वगैरह और भी बीमारियां उसने बताई? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ।
और इसी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। ओके, लोग पूछते होंगे बच्चे के बारे में, हाँ जी। क्या क्या कहते थे या क्या मन में आता था उस समय फिर? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। उस समय आपके टेस्टिमनी में लिखा कि आप भी थोड़ा मेंटली अपसेट हो चुके थे। हाँ जी। मतलब सोच बेबी के बारे में सोचते रहते थे, रोते रहते थे, परेशान हो चुके थे। हाँ जी। तो आप बताएं भाई, आपके मन में उस समय क्या आता था, क्या दिमाग में चलता था? दिमाग में थोड़ी कि इतने साल हो गए मैरिज को और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। दिमाग में जैसे ना थोड़ी टेंशन रहती थी, तो जैसे बाहर ज़्यादा दोस्तों में बैठते थे ना, तो लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हें कभी बेबी नहीं होगा, तुम जैसे ना किन्नर हो, तुम्हें बेबी नहीं होगा, ये बातें बोलते थे। और ऐसी बातें सुन के आप खुद भी बहुत ज्यादा रोते थे, परेशान रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। क्या मन में क्या चलता था कि बेबी नहीं हो रहा, अभी क्या करेंगे, फ्यूचर को लेकर किस चीज के लिए लेकर इतना टेंस थे आप? ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ओके। हाँ जी। और चर्च में आप आते गए लगातार? हाँ जी। 2017 से आप परमेश्वर में हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके। उसके बाद जब 14 नवंबर 2024 की मीटिंग को आपने अटेंड किया, तो ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की दास की तरह। हाँ जी। अब दोनों के ऊपर? नहीं, मेरी वाइफ देते हुए। उनके ऊपर हुई थी। ओके। हाँ इनकी वाइफ के ऊपर। उसको हम देखते हैं फुल स्क्रीन पे एक बार। मेरी जरूरत है मेरे यीशु, तू मेरी कुव्वत है। तो सिस्टर आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, तो मतलब क्या क्या महसूस हुआ उस वक्त आपको? ਜਦੋਂ ਸੇ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। और नेक्स्ट मंथ जब पीरियड्स मिस हुए, हाँ जी, तो चेक किया, तो फर्स्ट टाइम मैरिज के बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और परमेश्वर ने संभाल के रखा आपको, हाँ आपके बेबी को। और कितने साल के बाद ये बेबी हुआ? 5.5 साल। 5.5 साल बाद बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में, ऊंची हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टमनी परमेश्वर ने जो काम किया। और आप चर्च में एज ए वॉलंटियर अभी सेवा करते हैं? हाँ जी, मैं ट्रैफिक टीम ਦੇ ਵਿੱਚ वॉलंटियर ਹਾਂ जी। परमेश्वर की सेवा करनी आपने छोड़ी नहीं? नहीं नहीं। जब पास आशीष नहीं थी तब भी सेवा करनी बंद नहीं करी? हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह वचन में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। तो ये परमेश्वर ने एक आदर किया है, इनको एक अच्छा गिफ्ट दिया है, शर्मिंदगी को खत्म किया है। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज से। और किसे गाना ना चले, बल्ले 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 अजते हो गई बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले 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 अजते हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले 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 अजते हो गई बल्ले बल्ले, हाँ हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इन जीवित गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तो आइए इसी तरह से और टेस्टमनीज को हम सुनेंगे। गुरदासपुर ब्रांच से अगली टेस्टमनी है, इस सिस्टर का नाम मुस्कान है और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे भैन भ्रावां नूं जानसी दी, मेरा नाम मुस्कान है, मैं
गुरदासपुर ब्रांच तो बोलन दी 2 साल पहले मैं बहुत गलत संगति च विचार च चल गई सी, जिस करके मैं सारी दिहाड़ी फोन ते बहुत गल्लां करदी सी, सोशल मीडिया उत्ते एक्टिव रहनी सी, जिस करके मेरा पढ़ाई विच मन नहीं सी लगदा। मैं कई दिन तक स्कूल नहीं जांदी, जिस करके मेरा आंढ गुआंढ मैनूं बहुत ज़्यादा गल्लां करदा सी ते मैनूं बुलाउणा नहीं सी पसंद करदा। इस करके मैं अपने फ्यूचर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सी ना, सारे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ मैं ਛੱਡ नहीं पा रही। एक दिन मैनूं यूट्यूब के दौरान अंकनुला मिनिस्ट्री बारे पता लगा, इस करके मैं लगातार गुरदासपुर ब्रांच विच आंदी रही ते खुदा दे दास दी मैं प्रेरण सुनिया। उस दिन तो मैं आज़ाद हाँ। मैं खुदा दा धन्नवाद करदी सारे जैम सी। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये बहन ने बताया कि नहीं YouTube के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, और जब पता चला तो लगातार इन्होंने सरमन्स को सुनना शुरू किया। जब गवाहियों को सुनते थे तो इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता था, लगातार जुड़े रहे। और उसके बाद 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से डिलीवर अपने हाथों को उठाए, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? अकविंदर। कहाँ से हैं सिस्टर आप? ओके, सिस्टर का नाम अकविंदर कौर है और ये सरहंद से आए हैं। तो आप सिस्टर क्या गवाही आपके? मेरे बेटे की है। मेरी 2012 से मेरी मैरिज हुई, 13 से मेरी बेटी हुई। बेटी तो बाद मैं भी चांस नहीं सी लेंदी, मेरे घर दे हालात ऐसे सी। मैं मेरी बेटी तो सारे ही हो करते सी भी बेटी हुई है, गा नहीं करना। मेरी जेठानी दे 2 बेटियां सी, मैं बस यही कहती सी भी परमेश्वर ब्लेस करे बेटे ना। मेरे बहन भाई मेरे पहले दी चर्च 2020 विच। ओके, जब 2012 में आपकी मैरिज हुई तो 13 में जब आपकी पहली बेटी हुई, आप खुश थे अपने बेटी के साथ? बेटी के साथ बहुत खुश थी मैं। ओके, इनके दिल की इच्छा थी कि प्रभु ने बेबी बॉय के साथ भी ब्लेस करे ताकि इनका परिवार कंप्लीट हो सके। तो उसके बाद सिस्टर बताएं कि फिर आपके परिवार में पहले से और भी बेटियों की ब्लेसिंग थी आपके परिवार में? मेरी जेठानी के 2 बेटियां सी। मुझे भी तो ऐसे होता है भी मेरे ना बेटी हो जाए, मैं थोड़ा भी करती नहीं थी। जब मैं 2022 से मैं पापा जी की प्रेयर सुनी, 23 से मेरे बेटा होया 2019 से। जो सितंबर 2022 में परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की थी, तो उनके दिल की इच्छा थी कि प्रभु ने ब्लेस करे बेटे के साथ। उस समय जब प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इन्हें ब्लेस किया। तो आइए हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बिग मिरेकल्स हैपनिंग, बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके लाइफ में कर रहे हैं। आपके रसौली को खत्म कर रहे हैं, आपकी बॉडी की दिक्कतों को खत्म कर रहे हैं, आपको बेबीज की ब्लेसिंग को दे रहे हैं। तो आप जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की घोषणा की, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, उसके बाद तय क्या हुआ फिर? मैनू ऐसा लगा भी मेरे भी बेटा होगा। मैंने भी कंसीव किया। मेरे 2000 संडे 19 जून से मैं पापा जी की प्रेयर सुनी ते मंडे को मेरा प्रेट रिलीज हुई, मेरा बेबी बॉय होया। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन की जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, एकदम से सामर्थ्य फील हुई और ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इस बहन को संभाल के रखा। अब इनके पास बेटी भी है, बेटा भी है, पूरे परिवार को यीशु मसीह ने कंप्लीट कर दिया। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब। खुदा
पोशीदगी में भी रखा